خدا اکیڈمی میں آ چکے ہیں یہ، اب الحمدللہ مستقل یہی رہ رہے ہیں اور مستقل یہاں رہنا ہو رہا ہے ان کا، اور یہ مستقل یہی رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جی دانش احمد، اچھا ماشاء اللہ عبد الرحمن بھائی، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا شاگرد میرے ساتھ ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اب تو زیادہ محبت سے اس کو رکھنا ہوگا بھائی۔ جی جی عبد الرحمن صاحب، نیٹ ورک پرابلم ہے جس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے۔ جی رجاب بھائی نیپال سے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور شاہد ایم ڈی شاہد عالم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چلیے سیم بدل چکے ہیں جی۔ طارق انور صاحب فیاض بھائی، آپ کے پاس کوئی جگہ ہے پڑھانے کا؟ جی طارق بھائی، جگہ بولے تو مسجد یا مدرسہ یا اور کوئی کس چیز پر آپ چوائس رکھتے ہیں بتائیں؟ مسجد میں، مکتب میں، یا مدرسے میں، یا اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں؟ آپ کی چوائس کے مطابق اگر آپ بولیں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، اور مناسب جگہ ہوگا تو آپ سے رابطہ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جی میں اسکول پر ہوں اسفار بھائی، میں اسکول پر ہوں۔ جی وعلیکم السلام شکیل، ہاں یہ میرے شاہد بھائی، یہ ماسٹر شکیل صاحب ہیں، یہ کشن گنج ضلع بہادر گنج کے طرف کے ہیں، اور یہ ہمارے بہت ہی مشفق ہیں، اور میرے مدرسے میں یہ پوسٹڈ ہیں الحمدللہ، بہت اچھے ہیں۔ کیسے ہیں فیاض بھائی؟ جی وسیم بھائی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، جہاں مل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات چیت کروں گا میں انشاءاللہ، اور اپنا نمبر چھوڑ دیں۔ جی محفوظ بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نثار بھائی، نثار احمد صاحب وعلیکم السلام، ماشاءاللہ محفوظ بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اور میں اچانک بولا کہ چلیے شاہد صاحب تھوڑا سا آن لائن ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں ہو جائیں گی، اور دوستوں سے ہم روبرو ہو جاتے ہیں بہت دنوں کے بعد۔ چلیے الحمدللہ۔ ایم رحمانی صاحب یہ نرپت گنج فوربیس گنج سے ہیں الحمدللہ۔ جی محفوظ صاحب میں وعلیکم السلام، جی الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی، میں بخیر ہوں۔ شاہد بھائی آپ کہاں ہیں بتائیے شاہد صاحب، آپ سے پوچھ رہے ہیں وسیم بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی احباب میں جو ابھی ہوں، میں ابھی ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی جامعہ اسلامیہ تعلیم البنات بھیبرا چوک ارریا میں ہوں، اور میں یہاں ایک ٹیچر کی حیثیت سے میری یہاں پہ بحالی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور سبھی کو جس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے اس طرح سے پڑھانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ بس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چترویدی صاحب سے کچھ بات چیت ہوئی، اور جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی جامعہ اسلامیہ تعلیم البنات بھیبرا چوک ارریا۔ چلیے یہ اپنا انٹروڈکشن دے چکے ہیں، اور یہ اچانک اصل میں بلوا لے، اور ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی بھیبرا چوک ہمارا یہ ادارہ ہے، عبداللہ سالم چترویدی صاحب ہمارے اس کے فاؤنڈر، اور یہ یہاں ڈائریکٹر ہیں۔ جس اسکول میں بہت دن سے ان کو جگہ کی تلاش تھی تو میرے رابطے میں رہے، اچانک میرے اسکول میں جگہ مناسب ٹیچر کی ضرورت تھی ہمیں، تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑایا تو پھر ایک چہرہ نظر آیا، میں کہ مطلب شاہد سنگار پوری صاحب میرے سے جگہ طلب کیے تھے، تو میں الحمدللہ ڈائریکٹ رابطہ کیا ان سے، اور یہ بالکل تیار تھے الحمدللہ بحسن خوبی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے اس جگہ کو قبول کیا،
اور میں نے بلایا، ہاتھوں ہاتھ یہ الحمدللہ اپنے رخت سفر ہوئے اور اسکول آئے۔ دیکھیے اتفاق کی بات، جس روز بات ہوئی اس روز عبداللہ سالم صاحب وہیں جلسے میں تھے تو وہیں پر پھر ہاتھوں ہاتھ ان سے ملاقات کروا دی، ان سے بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے گاڑی ریٹین کرنا تھا، یہاں آنا تھا، تو الحمدللہ یہاں تک ان کو پورنیہ تک ریسیو کرنے کے بعد چھوڑ دی ہے۔ وہیں سے گاڑی سروسنگ میں چلی گئی، تو وہاں سے گاڑی پکڑ کے شاہد صاحب یہاں الحمدللہ ہیں۔ ابھی 4-5 ڈوز ہوا ہے ان کا، اور انشاءاللہ یہ رہیں گے جب تک ان کی حیات، میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ بقدر ضرورت۔ کیا کہیے گا، تنخواہ کی بات مت بولیے، بس خلوص ہے، اور تنخواہ جو ہے انشاءاللہ وہ بقدر ضرورت بہت ٹھیک ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور جی شاداب بھائی بہت بہت شکریہ تمامی حضرات کا۔ آپ لوگ بھی کبھی شرکت کریں اور آئیں ہمارے ادارے میں، ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی بھیبرا چوک میں، آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ جی اسکرین پر لاؤں شاہد صاحب کو، یہ ہے شاہد صاحب، اسکرین پر لا دیا۔ جی بھائی اچھا جی محفوظ بھائی، آپ تو ایک متحرک اور فعال شخصیت ہے، اور آپ تو ایک بڑے ادارے کے محتمم ہیں۔ آپ کو ضرورت جگہ کی کہاں پڑے گی بھائی، مذاق کیا کر رہے ہیں آپ تو بڑے لوگ ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے ہی رہیں گے۔ خیر، آپ نے جب طلب کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بھی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور شاہ نواز راہی صاحب یہ ہمارے جوکی کے ہیں، اچھے خواہش مند رہتے ہیں، اشعار شعر و شاعری سے ان کا شغف رہا ہے اور رہتا ہے بقدر ضرورت۔ جب دیکھیے بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے عبدالحق عظیمی صاحب ہمارے بہت ہی لچیلے نقیب ہیں، ہمارے ارڑیا کے، ضرورت پڑنے پر ضرورت پر کھڑے اترنے والے نقیب، علاقے میں ایک ہنگامی آواز کے ماہر جناب عبدالحق عظیمی صاحب کی شرکت ہوئی ہے۔ عبد الرحمن پراپت کال ہے اسکرین۔ جی ارے محترم میرے بھائی، آپ کی گفتگو سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ارے میرے بھائی کیا بات کرتے ہیں عبدالحق عظیمی صاحب، کہاں کچھ میں بول رہا ہوں۔ آپ کو محفوظ بول رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں محفوظ بھائی، آپ کو بول رہا ہوں۔ آپ کا نام محفوظ ہے، مولانا صاحب کس محفوظ کو بول رہے ہیں؟ آپ کو بول رہا ہوں۔ ارے استاد بول کر کے کیا آپ تھپڑ مارتے ہیں بھائی، میں استاد کے لائق ہوں کہاں، ابھی تو طفل مکتب ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ جی میں اپنا نمبر آپ کو طارق صاحب سینڈ کر دوں گا، اگر ہو سکے تو آپ لکھ لیں 98، لکھ لیں آپ 98 019 98 019 89 153 153 8998 019 89153۔ عادل رضا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون سا آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اگر جڑنا چاہیں؟ جی عادل رضا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جب آپ کو میں جوڑتا ہوں، عبدالحق عظیمی صاحب آپ خوبصورت چہرے کو آپ اسکرین جی شاہنواز صاحب دیکھیے، طارق انور صاحب میرا کام، ارے دیکھیے میرے دو دوستوں نے میرا نمبر شیئر کر دیا ہے۔ خیر
एम रहमानी साहब के पास मेरा नंबर 32 है जी। अब्दुल हक अजीमी साहब अपना कैमरा फोकस करें जी। ज़ेर बिस्तर हूँ हजरत, ज़ेर बिस्तर। अरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे यार फरमाएं, कैसे हैं आप सभी? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ, दुआएं आपके। यकीनन ये जो गाहे बगाहे आप ऑनलाइन आते हैं, एक तो दीदार करने का बहुत बेहतरीन मौका मैसर होता है, दूसरा आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है, आपके चाहने वाले जो सीमांचल के अतराफ में या फिर यूँ कहिए कि बिहार के कोने कोने में आपके मुहिब्बीन हैं, ये जब से जलसा जुलूस थोड़ी सी जो है कि कम हो गया है थोड़ा सा, तो ऑनलाइन आकर के आप अपने आवाज़ का, हुस्न का दीदार कराते हैं, बड़ी खुशी की बात है। अरे बड़े भाई, चलिए खैर। अजीम भाई अब्दुल हक अजीमी साहब, ये आपकी सर्रा नवाजी और हुस्न ज़न है, वरना तो ये नाचीज किसी लायक नहीं है। और बस आपकी मोहब्बत और आपकी जो दिलो दिमाग मेरे लिए मोहब्बत से रात कर चुकी है। इंसान के लायक और ना लायक दो लफ्ज है, वो उनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बताती है। आपके कहने से कुछ नहीं होना। इंसान हमेशा अपने आप को कमतर और हकीर ही बताता है। यकीन क्या है, सच्ची बात क्या है, ये जो लिसनर्स बैठे हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपके रुख अनवर का जो दीदार कर रहे हैं, आपके इस मुस्कुराते चेहरे को अपनी नजरों में जो कैद कर रहे हैं ना, वो बताएंगे। ये है नसीबाना एक झलक। वो नाजरीन आप देख सकते हैं, मतलब एहसास कीजिए कि कोई ऑनलाइन है जो बोल रहा है और फैयाज राही को अपनी खूबसूरत नज़ामती पहलू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसरूर हो रहा हूँ। शुक्रिया अल्लाह सदा सलामत रखे, आपकी कैफियत गुफ्तगू में और तराजी अता फरमाए, और अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, खुशहाल रखे। शुक्रिया माशाल्लाह। और मैं ये अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, मेरे मुहिब्बीन से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जनाब अब्दुल हक अजीमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जोड़े में शामिल हो गए हैं। इनके लिए जोड़े में शामिल हो गए हैं। अब हाथ लगाने की कोशिश कीजिए मौलाना जी। मौलाना अब्दुल वारिस साहब भी तशरीफ फरमा है, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मौलाना अब्दुल वारिस साहब जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो कि हार्ट दी हजरत शायद हैं। अब्दुल हक भाई जी फरमाएं। ये हमारे मैं तो जवाब नहीं दे पाता हूँ सलाम और कलाम का, लेकिन ये है कि शाहिद साहब एक अपने मोबाइल लेकर के बैठ के कम से कम सलाम का जवाब दे रहे हैं। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और बाकी महफूज साहब की एक बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने लिखा है कि काश अगर इस जादूगरी आवाज के जरिए कुछ जादू देख लिया जाए तो बेहतर है। महफूज साहब कमेंट कर रहे हैं कि मौलाना साहब कुछ नज़म सुना दें, तो मैं भी यही कहूँगा कि जहाँ हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जिन्होंने अपनी शायरी का छाप छोड़ा है, हमारे दरमियान ऑनलाइन के जरिए तशरीफ फरमा है। यकीनन हर कोई यही सोच रहा है कि कुछ सुने, तो इस बीच आप चलिए, एक शाहिद साहब जो हमारे साथ हैं, जी उन्होंने एक खूबसूरत कलाम लिखा है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उन्होंने अपने कलम को हरकत दिया है। तो उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना आप मेरे कलाम को ही पढ़ के इस्तेफादा कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा, और उससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आवाम के दरमियान इस कलाम की क्या झलक है उनसे एक तासुर भी निकल कर सामने आएगा। तो बेहतर है कि आप पेश कर रहे हैं। चलिए पेश करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो कलाम का कोई मिसरा छा जाए तो बस देखिएगा। मैं खुशी और फरहत और शादमानी में समझता हूँ कि मेरे इस पढ़ने के दरमियान अब्दुल हक अजीमी साहब की शिरकत है। सारे
سارے عالم کے ہیں سلطان مدینے والے، سارے عالم کے ہیں سلطان مدینے والے، سارے عالم کے ہیں سلطان مدینے والے، سارے عالم کے سارے عالم کے سلطان مدینے والے، سارے عالم کے سلطان مدینے والے، کل جہاں آپ پہ قربان مدینے والے، کل جہاں آپ پہ قربان مدینے والے، سارے عالم کے سلطان مدینے والے۔ حقیقت بتاؤں کہ میں یہ کلام لکھا ہے اور وہ نکال کر کے مجھ کو دیے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی مشق وغیرہ کیا نہیں ہے۔ شاید کہ شاعر صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا طرز یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ طرز ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ۔ راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، راستہ خود کا راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، کر گئے دین کو آسان مدینے والے، کر گئے دین کو آسان مدینے والے، سارے عالم کے سلطان مدینے والے، کل جہاں آپ کے قربان مدینے والے۔ یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیے گا کس طریقے سے شاعر جناب شاہد سنگار پوری نے اپنی قلم کو حرکت دیا ہے، اس کی روشنی کس طرح بکھیری ہے انہوں نے، دیکھیے گا۔ ان کی کابش قلم کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت اچھا عمدہ کلام لکھا ہے، میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ اہل ایمان کے لیے آپ بنیں گے شافع، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے آپ بنیں گے شافع، اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کے لیے آپ بنیں گے شافع، اہل ایمان کے لیے آپ بنیں گے شافع، جب سبھی ہوں گے پریشان مدینے والے، جب سبھی ہوں گے پریشان مدینے والے۔ قابل احترام جناب بیکل شیر حسین آبادی صاحب جڑ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی ہے، فل بدہی لکھنے کے مطلب شاعر ہیں، اور الحمدللہ بہت خوبصورت انداز سے شاعری لکھتے ہیں وہ، اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں پیش کرتا ہوں اور میں آپ کی شرکت کو اپنے لیے باعث سند سمجھتا ہوں۔ بیکل شیر حسین آبادی میرے دوست، بہت میرے پرانے فرینڈ ہیں، اور ان کی شرکت سے مجھے دل میں ایک تازگی اور سکون سا محسوس ہوتا۔ دیکھیے گا، شعر پیش کرتا ہوں۔ ہو مجھے روزے اقدس کی زیارت ایک بار، آمین، ہو مجھے روزے اقدس کی زیارت ایک بار، ہو مجھے روزے اقدس کی زیارت ایک بار، ہو مجھے روزے مجھے روزے اقدس کی زیارت ایک
مجھے روزے مقدس کی زیارت ایک بار، ہر گھڑی ہاں ہر گھڑی دیکھا ہے ارمان مدینے والے، ہر گھڑی دیکھا ہے ارمان مدینے والے، سارے عالم کے سلطان مدینے والے، کل جہاں آپ پہ قربان مدینے والے۔ یہ بھی شعر بطور خاص آخری شعر مقتے کا شعر ہے۔ صاحب کلام نے جو اس کلام کے لیے اپنی قلم کو حرکت دیا ہے، کیوں نہ اس کی قلم ریزی کو جو انہوں نے کیا ہے اس کا اس نے کلام ہے، دیکھے گا آخری شعر پہ انہوں نے کی کوشش کی ہے اور وہ ان کی التجا کیا ہے، دیکھے گا شعر میں انہوں نے اپنا نقش کیا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے، اور اگر اور اچھا لگ جائے تو اس پوسٹ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس شعر تھوڑی سی جی برابر میں حسین بھائی یہ شاہد سنگار پوری صاحب ہے، جی شاید کہ آپ سے مطلب روبرو ہے اور بات چیت بھی الحمدللہ۔ چلیے بیکل بھائی میں پڑھتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں میں۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، اللہ اللہ شعر کو دیکھے بھائی، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد۔ جی الحمدللہ عادل رضا بھائی بخیر ہوں، دعائیں ہیں آپ کی، اور حنزلہ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی شرکت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آمین آمین۔ محفوظ بھائی یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور یہ جی اور یہ نیپال ڈینیا سے ان کا تعلق ہے، اندرون نیپال کے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی کہ ایک الگ کیٹری سے وہ مجھے سماعت کر رہے ہیں اور اپنی مسلسل دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے گا مقتے کا شعر ہے، اور رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، رب نے قرآن میں رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے شاہد، سب سے اعلیٰ ہے وہ انسان مدینے والے، سب سے اعلیٰ ہے وہ انسان مدینے والے، سب سے اعلیٰ ہے وہ انسان مدینے والے، سارے عالم کے سلطان مدینے والے، کل جہاں آپ کے قربان مدینے والے، راستہ خود کا راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، راستہ خود کا خود چل کے دکھایا ہم کو، ارے کر گئے دین کو آسان مدینے والے، کر گئے دین کو آسان مدینے والے۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کی محبت یہ ہمارے کیا کہتے ہیں جھارکھنڈ کے آپ ہوئے جھارکھنڈ کا جناب فہیم الدین فہیم دھنبادی صاحب جڑ چکے، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم دھنبادی صاحب کی شرکت، میں ان کا خیر مقدم استقبال بالکل اچھوتے انداز میں کرتا ہوں۔ آپ کی بہت بہت عادل رضا بھائی، اور آپ کی مسلسل دعائیں میرے لیے باعث سرت کے حقدار ہے، اور اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ فہیم بھائی
आपकी शिरकत को मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यकीनन आप लोगों की मोहब्बत और तवज्जो बहुत तवानाई बख्शती है और ताकत और ऊर्जा मिलता है आप लोगों की मोहब्बत से। और शाहिद साहब, ये हुसैन बैकल भाई कहते हैं कि शाहिद भाई को और उनकी मेहनत को सलाम। इन दिनों सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्दा तखील व तरीका से शायरी में पेश कर रहे हैं। मौसूफ के लिए शेर बहुत अच्छा, खुदा बख्शे तुम्हें शोहरत। यही शेरों की हर दिल के लिए बस एक है चाहत। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी का नाम है बैकल शेरू हुसैनाबादी। बैकल शेरू हुसैनाबादी। और आपको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए। चलिए फहीम भाई, ऐसा करते हैं कि आपको मैं ऑनलाइन लेता हूँ। चाहता हूँ कि आपकी कुछ लचीली आवाज। और उससे क्या हमारे सऊदी अरब से भी हमारे क्या कहते हैं, सऊदी अरब में जाके रहते हैं अंजुम साहब, पुराने यार हैं माशाअल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले ये वहाँ के प्रोग्राम में पढ़ रहे थे, मैं इसको देखा था। चलिए फहीम भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। माशाअल्लाह, क्या बात है। वो खूबसूरत लबालब जगह में कहाँ है फहीम भाई? मैं एक शादी के प्रोग्राम में आया हूँ। आप कहाँ प्रोग्राम से खाली रहते हैं भाई? शादी हो, खतना हो, बियाह हो, जलसा हो, सारा प्रोग्राम आपके नाम है मेरे भाई। माशाअल्लाह। अभी देख रहा हूँ यहाँ अभी बाजा बज रहा है अभी। बस आप सबको दुआ है, आपको मैं आपकी मोहब्बत से मैं जुड़ गया। मैं हजरत से बात कर लिया जाए। अरे यही तो फहीम धनबादी की असल निशानी है कि ऑनलाइन कोई भी पोस्ट अगर दिख जाए तो फहीम धनबादी की शिरकत ना हो बिल्कुल अधूरी है। और वाकई आपकी मोहब्बत को सलाम और आपकी खुलूस को सलाम कि आप मशगूल रहते हुए भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत किया है। और हकीकत में आपकी इस मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। कहाँ अभी, मतलब आप तो चहल पहल में हैं, आप कुछ कलाम भी नहीं सुना सकते? नहीं, अभी मुश्किल है सुनाना। जी 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 जी। चलिए पढ़े, मैं सुन रहा हूँ, चल आप पढ़े। चलिए इंशाल्लाह। नहीं, मैं पढ़ लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इफ्तिखार अंजुम साहब को। जी जी जी। इफ्तिखार अंजुम साहब हमारे बहुत मुशफिक हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैफ हाल है शेख? और यार क्या खूबसूरत चेहरा नजर आ गया, आज दिल खुश हो गया। अरे मैं बदनसीब की ये कहिए गुस्ताखी है ये, आपके साथ कभी मैं आपसे ताल्लुक मतलब कॉल नहीं कर पाया, माजरत खाऊं मैं। लेकिन और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक पवित्र जगह सऊदी अरबिया में आपकी मतलब कयाम है। अल्लाह सलामत रखे आपको। चेहरा भी हसास बशास है और खूबसूरत भी लग रहे हैं माशाअल्लाह। चलो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और बताइए फयाज साहब, माशाअल्लाह आप लोगों को हम देखते रहते, बहुत खुशी होती है, बहुत फख्र होता है। और खाना वगैरह हो गया? कुछ शायर हैं जो अपने दोस्त और हमरा की बस वही समझ रहे ना, ज्यादा गहराई में बस वो लोग आपस में ही तालमेल को जोड़ के रखते हैं। हमको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अच्छे पढ़ने वाले हैं, इल्म वाले लोग, सबकी कदर करनी चाहिए। वाह वाह वाह, 75 मरतबा। आपकी
मेहरबानी की है आपने, जो सच और सटीक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कसम से आपने बहुत अच्छी बात की। 75 मरतबा या 100 मरतबा वाह वाह कहने से कोई काबिल नहीं बन जाता है। अगर हम फैयाज भाई के लिए एक बार दिल से कह देंगे तो माशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में कबूल होगा, अगर दिल से कहेंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहा देखिए फहीम भाई शायद के इफ्तिखार अंजुम भाई को आप पहचान रहे हैं? पहचान रहा अच्छी तरह पहचान रहा। देखिए शुक्रिया। एक वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में एक आवाज था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी थे और हम लोग से बातचीत भी होती थी। अब तो ये हम लोग से मुनक़ता हो गए हैं, लेकिन चेहरा देखता हूँ क्योंकि सऊदी अरब में पहुंच गए हैं और अल्लाह हकीकत बात है अपना रोजी रोटी के लिए गए हैं। अल्लाह ताला और मजीद तरक्कियात से नवाजे। खुशी होती है अपने वतन से दूर रह करके अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुपए कमा रहे हैं, हमें खुशी होनी चाहिए और दुआ निकलनी चाहिए। शेर व शायरी से तो हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं तारीफ और तौसीफ कर सकते हैं, दीन में रह सकते हैं, वहां भी अपना दीन में रह करके काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए बहुत दिन हो गए इफ्तिखार भाई, आज मेरी ख्वाहिश है कि आपकी खूबसूरत चंद अशार हमारी इस लाइफ में जुड़ करके आप गुनगुना दें तो आज एक माहौल बन जाए। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के सामने में मेरी क्या मजाल है। ये अल्फाज नहीं बोलिए तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है चलिए देखिए 2 हफ्ता पहले यहाँ एक माशाल्लाह प्रोग्राम किया हूँ, यहाँ मुझे शेर पढ़ने का मौका मिला था। जैसा शाहिद भाई बता रहे थे, वो शायद मेरे प्रोग्राम को देखे हैं। मैं यहाँ एक प्रोग्राम में पढ़ा था सऊदी अरब में, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, तो मैं पढ़ा था माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। और हमारे डॉक्टर अरशद साकिब साहब माशाल्लाह आपके मधुबनी के बहुत प्यारे शायर हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लहजे के मालिक हैं। चलिए साकिब भाई, ये अंजुम भाई आप थोड़ा गुनगुना दें और अरशद भाई को भी ले लेते हैं। देखिए आप तो बोल दिए हैं तो कुछ न कुछ तो गुनगुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत हो गया है। ठीक है, हुक्म ने किया मेरे भाई, हुक्म ने किया हूँ मैं। आपसे इल्तिजा है, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी आवाज सुनो और दिल को तस्कीन मिले। अनवर भाई, और ले लियो उनको लाइन पे, हजरत को। जी 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 ले रहा हूँ। और अरशद भाई आप शिरकत करें। क्या पढ़ेंगे, जब से इंडिया छोड़े तब से कलाम कोई बन नहीं पाया हजरत। आप लोग तो शायर हैं, शायर हिंदुस्तान हैं, तो आप लोग तो रोजाना कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। अभी हमारे माशाल्लाह नाजिम हिंदुस्तान शाहिद भाई भी माशाल्लाह, उनका प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। मेहनत करिए वो भी। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल? अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छा निजामत करते हैं, मैं देखता हूँ आपकी निजामत को, अक्सर प्रोग्राम में जा रहे हैं आजकल। अल्लाह आपको तरक्की दे इंशाल्लाह। इफ्तिखार भाई और अब और ज्यादा जाएंगे इंशाल्लाह ये निजामत। अररिया की सरजमीन पर बस आप ही लोग नजर आए, ये सिर्फ लोग जानते हैं और लोग की सोच है कि ये लोग यहीं तक रहे, लेकिन मेरी जो सोच है, और मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराए। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक पुराना कलाम मैं 1 या 2 शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी नजला जुकाम हो गया यहाँ। जी 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 इरशाद। कि ज़माने से अंधेरों का सफाया कर दिया कि ज़माने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए। ज़माने से अंधेरों का
ارے صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اجالا کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت کہ عمدہ، میں بہت عمدہ۔ جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے، کہ میں جیسا کہ میں جیسا چاہتا ہوں کاش ویسا کر دیا جائے، میرے مولا مجھے خاک نہ کر دیا، آمین آمین، اللہ تعالیٰ قبول، بہت عمدہ افتخار، بہت عمدہ بھائی، خاک ختم کر دیا، بالکل دل گارڈن گارڈن ہو گیا، واہ، دیا جائے۔ کر دیا، بہت شکریہ۔ آخر سے پڑھتا ہوں فیاض بھائی آپ کی دعا لیتے ہوئے۔ عنایت عنایت عنایت، بہت 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 چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، چلو نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، شاملی سرزمین شاملی کے بہت ہی بیدار مغز شخصیت، جن کو دلشاد زخمی کے درمیان رہنے والے اور دلشاد زخمی کو دلشاد زخمی بنانے والے لوگ جناب غضنفر خان صاحب کی شرکت، اور وہ آپ کو شاملی سے سننا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ افتخار بھائی کہ آپ نے اس ناچیز کی آواز کو قبول کیا ہے۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ واقعی آپ کی خلوص کو سلام۔ دیکھیے قاری شارق جامعی صاحب بھی شرکت کر چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وسیم صاحب آپ اپنی کچھ خوبصورت لہجہ اور خوبصورت کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بڑے بڑے شاعر۔ بہت شکریہ جناب فیاض راہی صاحب کا، اور ایک انشاءاللہ خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب شارق جامعی صاحب اگر ہیں تو وہ بھی جڑ سکتے ہیں، اور وہ جڑ جائیں انشاءاللہ وسیم صاححب کے کلام کو سننے کے بعد، آپ کے کلام کو سننے کے بعد۔ فیاض بھائی آپ لوگ سبھی حضرات سے گزارش ہے اور کہ دعا کی درخواست ہے، انشاءاللہ جب سعودی کی سرزمین سے ہم انڈیا میں قدم رکھیں گے، سمجھیے، تو آپ لوگوں کی دعا ہونی چاہیے۔ ایک ایسا پروگرام سوچا ہوں ماشاءاللہ، اگر آپ بزرگوں کی دعا ہو تو دعا انشاءاللہ اللہ آپ کے سوز حسنہ کو اللہ قبول فرمائے۔ نیک سوچ ہے، نعت نبی کی محفل جمانے کا آپ کا سوچ ہے، کیونکہ اس دیار سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس وقت ہے، اور آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر میرے نبی کی محبت ہے، جس محبت کو نظر رکھ کر کے آپ اس پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ انشاءاللہ اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو سوچ ہے انشاءاللہ یہ برابر ہوگا، انشاءاللہ امید ہے اللہ آپ کو یاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا فرمائے بھائی، اور خصوصاً ہمارے افتخار انجم صاحب مدھوبنی کے سرزمین کے ابھرتے ہوئے بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر تھے ہیں، اور اس وقت آپ کے درمیان نہیں ہیں، وہ دور ہیں، تو آپ اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں، اور اللہ صحت یاب رکھے، موصوف کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔
आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी चलिए वसीम भाई आप थोड़ा सुना दें। दरमियान तो बहुत सारे शोरा इज़ाम तशरीफ फरमा है। मैं बहुत तो एक काम करिए, मुझे सिरे से बाहर कर दीजिए, मैं नीचे से कमेंट करके कहता हूँ। अच्छा ठीक है। से बड़े बड़े शोरा के सामने मेरी हाजिरी हुई और आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत सारे अपना कलाम भेजते रहते हैं, मैं देखता हूँ, आपका कलाम लाजवाब है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, ये सब आपसे कोई मोहब्बत है। चलिए मदीने की बात आई तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, देखें। जी जी भाई पढ़ दें। इलाही ये खजाना चाहता हूँ, क्या भाई क्या अंदाज है, वाह वाह वाह। इलाही ये खजाना चाहता हूँ, इलाही ये खजाना चाहता हूँ, इलाही ये खजाना चाहता हूँ, मैं तैबा में ठिकाना चाहता हूँ, क्या आरज़ू है भाई, वाह वाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वाह चाहता हूँ। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चाहत एक मुद्दत से है दिल में, ये चाहत एक से है दिल में, ये चाहत एक मुद्दत से है दिल में, ये चाहत एक मुद्दत से है दिल में, मदीना में भी जाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ, कि मुझे अहले जहाँ की फिक्र क्यों हो, मुझे अहले जहाँ की फिक्र क्यों हो, मुझे अहले जहाँ की फिक्र क्यों हो, मैं आका को मनाना चाहता हूँ, मैं आका को मनाना चाहता हूँ। और एक शेर सहाबा पर उठाते हैं जो उंगली, 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 सजा उनको दिलाना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ। और आखिरी शेर देखें दुआ के साथ, कि लिखी है जितनी नातें इनको आका, लिखी है जितनी नातें इनको आका, लिखी है जितनी नातें इनको आका, मैं रोजा पे सुनाना चाहता हूँ, मैं रोजा पर सुनाना चाहता हूँ, मैं तैबा में ठिकाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, बेहतरीन माशाअल्लाह, बहुत उम्दा शायरी भाई, बहुत उम्दा। आपने एक समा बांध दिया और खूबसूरत लबो लहजे से आपने इस महफिल को खूबसूरत पहलू पे लाके छोड़ा है। अल्लाह आपकी इस आवाज में और तवानाई अता करे और खूबसूरत लबो लहजा से आपको अल्लाह नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा, और शायद के पहली मर्तबा आपसे हमारी मुलाकात है। इस तरह इससे पहले भी हुई थी कुरान की दुनिया फेसबुक पेज पर।
अच्छा 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 जी सारे अब्दुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे पढ़े आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगर कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो वो कमेंट करें इंशाल्लाह। एक साहब कौन थे, इफ्तिखार अंजुम साहब को कह रहे थे। हाँ, ये महफूज साहब थे जो नेपाल वाले हैं ना, वो कह रहे थे एक मरतबा एक कलाम और सुना दे। इमरान शाकिर साहब, इस्लामिक इमरान नेटवर्क। शाकिर साहब, अरे भाई बाप रे बाप, इमरान शाकिर साहब जुड़ जाइए भाई। जोड़िए माशाल्लाह, इस्लामिक इस्लामिक नेटवर्क का नाम था। माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो इस्लामिक नेटवर्क। हाँ हाँ ठीक है, वालेकुम सलाम। आप इस्लामिक नेटवर्क के नाथ आप जुड़ जाए भाई। इमरान शाकिर साहब आपका खैर मकदम है भाई, वाह। इस्तकबाल है वसीम साहब की ख्वाहिश और जनाब शाहिद सिंगारपुरी साहब की ख्वाहिश आपके साथ है, और आपकी शिरकत से मैं एक खुशी और फरहत और शादमानी महसूस करूंगा। अल्लाह आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, शायद कि मैंने आपको बगैर तैयारी के ही हरकत में ला दिया है, माजरत खा हूं मैं। क्योंकि अचानक किसी को मतलब मजबूर नहीं करना चाहिए, शायद कि मैंने मजबूर किया आपको। नहीं कोई बात नहीं। चलिए, अब मैं तो हाँ, शायद आपसे हमारी मुलाकात है। हाँ, शायद किसी प्रोग्राम। जी 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 माशाल्लाह। तो इमरान शाकिर, हाँ इमरान शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर मकदम इस्तकबाल है, और अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके चेहरे से मुझे खुशी हो रही है, और वसीम साहब की फरमाइश रही, और शाहिद सिंगारपुरी साहब की भी फरमाइश रही, और जब इन दोनों की फरमाइश है तो ये फैयाज राही की फरमाइश क्यों नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी खुश मुतरन्निम और खुशगुलू आवाज इस हमारे फेसबुक पेज के अंदर भी गर्दिश करे, और मेरे रफका दोस्त, मेरे फ्रेंड के दरमियान आपकी आवाज शेयर हो। चाहता हूँ कि आप कुछ अपने मुतरन्निम और मंजूम कलाम को हम सामीन के सामने पेश करें। बहुत ही आपका शुक्रगुजार होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आइए, बिल्कुल नया धुन और नया शेर बिल्कुल मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई। दफ बजाती है खुशी से, दफ बजाती है खुशी से, बच्चियां अंसार की। क्या मतलब उठा भाई? है खुशी से बच्चियां अंसार की, दफ बजाती है खुशी से, दफ बजाती है खुशी से, बच्चियां अंसार की, बच्चियां अंसार की। अरे देखो 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 आ रही है ऊँटनी सरकार की, देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की, है खुशी से दफ बजाती है खुशी से, बच्चियां अंसार की। अरे देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की, ऊँटनी सरकार की। और ये शेर देखें, मकड़ियाँ जाले कबूतर
अंडे वो सुराख का, मकड़ियाँ जाले कबूतर, मकड़ियाँ जाले कबूतर, अंडे वो सुराख का, अंडे वो सुराख का, अरे छेड़ दी सिद्दीक अकबर, छेड़ दी सिद्दीक अकबर ने कहानी गार की, छेड़ सिद्दीक अकबर ने कहानी गार की। अरे देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की। और एक शेर देखिएगा, बहुत उम्दा इकराम भाई, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। गुंबदे खजरा का फोटो छाप कर नक्शो निगार, गुंबदे खजरा का फोटो छाप कर नक्शो निगार, गुंबदे खजरा का फोटो छाप कर नक्शो निगार, छाप कर नक्शो निगार। अरे जहाँ से भी तूने बढ़ा दी, अरे जहाँ से भी तूने बढ़ा दी अहमियत अखबार की, जहाँ से बढ़ा दी अहमियत अखबार की। अरे देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की। और एक शेर देखें, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। भूल बैठा मिस्र के बाजार का हुस्नो जमाल, भूल बैठा मिस्र के बाजार का हुस्नो जमाल, भूल बैठा मिस्र के बाजार का हुस्नो जमाल, बाजार का हुस्नो जमाल। देख ली, अरे देख ली जिसने भी रौनक, देख ली जिसने भी रौनक मुस्तफा बाजार की, मुस्तफा बाजार की। अरे देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की। और सरकार की कलमाए हक पढ़ लिया खत्ताब के बेटे ने जब, कलमाए खत्ताब के बेटे ने जब, कलमाए हक पढ़ लिया जब खत्ताब के, कलमाए हक पढ़ लिया खत्ताब के बेटे ने जब, खत्ताब के बेटे ने जब, हो गई खटिया खड़ी, हो गई खटिया खड़ी। अरे मक्के के सब सरदार की, मक्के के सब सरदार की डफ बजाती है खुशी से बच्चियां अंसार की। देखो देखो आ रही है ऊँटनी सरकार की। साकिब भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये थे इमरान भाई, इमरान शाकिर साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह, बहुत खूब।
आग हो गया भाई, और दिल तो चाह रहा था कि और सुनो इंशाअल्लाह। और मैं अब मेरा जज्बा आ गया, मैं हौसले में आ गया, मैं इंशाअल्लाह कुछ टाइम निकाल के फेसबुक आईडी को मैं जरूर हरकत दूंगा इन चेहरों के लिए भाई। मेरा तो आज का दिन मेरा बाग बाग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूँ इमरान भाई चाहते हैं कि हमारे ख्वाहिशमंद मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे बहुत मुशफिक व मुरब्बी जनाब तारिक साहब खुद ख्वाहिशमंद है। मैं चाहता हूं कि तारिक भाई अपने कुछ कलाम पेश करें, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए और अपना कलाम पेश करें। माशाअल्लाह। चलिए तारिक भाईजान की आवाज तारिक बहुत भाई सुरीली थी। आप पढ़ें, आप तारिक भाई। तारिक भाई आप पढ़ें। आवाज शायद के नहीं जा रही है। तारिक भाई आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, आवाज नहीं जा रही है। कैप वाले मेरे भाई आप पढ़े। अच्छा, महफूज तारिक बोल रहा, मैं तो आप समझ रहा था तारिक कोई और है, उनको बोल रहा। दानिश नहीं। ओ दानिश भाई। महफूज भाई बोल रहा हूँ मैं आपको, तभी से महफूज मैं तारिक भाई समझ रहा था। ओ अच्छा, चलिए पेश कीजिए आप ही के तरफ हम लोग झुके हुए हैं, आपकी तरफ, आपकी खूबसूरत चेहरे की तरफ ही देख रहे हैं हम लोग। इमरान शाकिर साहब भी और महफूज भाई भी, और मैं भी देख रहा हूँ, और शाहिद साहब भी देख रहे हैं। मैं कलीम आजिज साहब का कुछ गजल आपके समाज के हवाले करूंगा। इरशाद हो। इरशाद हो। आप लोगों ने माशाअल्लाह नात पाक सुनाया, बहुत दिल को सुकून मिली। जी। ये हंसी खुशी का मौसम, ये बहार का जमाना, तेरे वास्ते हकीकत, मेरे वास्ते फसाना। ये हंसी खुशी का मौसम, ये बहार का जमाना, तेरे वास्ते हकीकत, मेरे वास्ते फसाना। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। संभल सकेंगी तुझसे तेरी जुल्फ ताबशाना, मैं अभी से देखता हूँ जो दिखाएगा जमाना। संभल सकेंगे तुझसे तेरी जुल्फ ताबशाना, मैं अभी से देखता हूँ जो दिखाएगा जमाना। मेरी खानिमा खराबी का जहां में है फसाना, ये वहाँ सा है जिसको है। इमरान शाकिर साहब सुनिए, देखिए बहुत अच्छा। निगाह बाग़बान में कोई और हो गया हूँ, अभी 4 दिन हुए हैं जला है आशियाना। क्या खिंचाव है आवाज में भाई, दिल खुश कर दिया आपने। अंदाज बहुत लाजवाब है माशाल्लाह। कोई और हो गया हूँ, अभी 4 दिन हुए हैं कि जला है आशियाना। हज़रत कहता हूँ, मुझे इतना ही याद है। अरे बहुत, अरे मेरे भाई आपने तो दिल खुश कर दिया भाई।
क्या आवाज, क्या तरंग है आपकी आवाज में। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह मैं सोचा कि अरे दुआएं क्या, दिल से दुआएं हैं भाई। अल्लाह आपकी आवाज को और आपको सलामत रखे। आप सलामत रहेंगे तब तो आपकी आवाज सुनने को मिलेगी। जी जी जी। बस ये चाहता हूँ कि चलता फिरता शायरी आप करते रहे और दमकते और भागते रहे। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया। जी ये देखिए आमिर भाई, चलते हैं। एक साकिब भाई की ख्वाहिश है, वो भी जुड़ना चाहते हैं कि साकिब भाई भी। जी जी ठीक ठीक ठीक। रिक्वेस्ट भेजिए, उधर से रिक्वेस्ट भेजिए। साकिब साहब आप रिक्वेस्ट भेजें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट भेज दें आप, ताकि हमें मालूम हो। आपका यहाँ फॉन्ट दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से आप थोड़ा रिक्वेस्ट भेज दें तो अच्छा रहेगा। अफरोज साहब, चलिए जब तक अफरोज साहब को लेते हैं आप रिक्वेस्ट भेज दें। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हाफिज सगीर अहमद साहब, रामगढ़ झारखंड। अरे भाई वाह वाह वाह, मेरे बड़े भाई सगीर अहमद साहब। अच्छा, ये जिनकी आवाज को मैं रिंगटोन लगाया हुआ हूँ। अच्छा चलिए, तो कहाँ हाफिज सगीर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा रिक्वेस्ट भेज दें ताकि आप आराम आसानी के साथ आपको जोड़ सकूं। अफरोज भाई आप भी जुड़े। चलिए महफूज भाई, कुछ आप ही सुना दीजिए, थोड़ा सा नेपाली आवाज सुनना चाह रहे हैं लोग। अरे बाप रे, नेपाली में तो हम बोल सकते हैं हजरत, बात कर सकते हैं। वैसी तो कोई नेपाली में गीत बनी नहीं है, नात नज़म बना नहीं है कि उसको गाऊं। हाँ फैयाज भाई आप भी कुछ। अच्छा फैयाज भाई आप भी। वैसे मैं मुगन्नी भी नहीं हूँ, न शायर हूँ। बस ये है कि आपने दीदार कर लेता हूँ, ये की बात है। जी इफ्तिखार अंजुम साहब इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे। मैं गुलाम शाहिदी हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं शाहिदी हूँ, मैं गुलाम शाहिदी मैं गुलाम शाहिदी हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, पढ़ पढ़ दरूद दिल की बस्ती सजा रहा हूँ, पढ़ पढ़ दरूद दिल की बस्ती सजा रहा हूँ। हिजरे नबी ने मुझको बेताब कर दिया है, हिजरे नबी ने हिजरे नबी ने मुझको बेताब कर दिया है, आँखों से अपनी पे हम आंसू बहा रहा हूँ, आँखों से अपनी पे हम आंसू बहा रहा हूँ। क्या दर्द है भाई, वाह बहुत दर्द के साथ गा रहे हैं। जो जात
بن کے آئی ہے رحمت دو عالم، جو ذات بن کے آئی ہے رحمت دو عالم، جو ذات بن کے جو ذات بن کے آئی ہے رحمت دو عالم، جو ذات بن کے آئی ہے رحمت دو عالم، اسی ذات خاص پر میں دل و جان لٹا رہا ہوں، اسی ذات خاص پر میں دل و جان لٹا رہا ہوں، پڑھ پڑھ درود دل کی بستی سجا رہا ہوں، ہجر نبی ہجر نبی نے مجھ کو، ہجر نبی نے مجھ کو بےتاب کر دیا ہے، اسی ذات خاص پر میں آنسو بہا رہا ہوں، اسی ذات خاص پر میں دل و جان لٹا رہا ہوں۔ ارے میں تو سننے والے لوگوں میں سے ہوں، پڑھنے والے لوگوں میں سے ہوں نہیں، اور آپ بڑے شعراء میں شامل ہوتے ہیں حضرت، ایسے مت بولیے۔ ارے یہ حقیقت بیانی ہے بھائی، ہے نا؟ کیا ہے؟ دیکھیے عمران شاکر صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کلام سنائیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ شرکت کیے، اور دل سے میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے میرے دوست۔ اور واقعی آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا، اور افروز عالم صاحب، حافظ فرحان صاحب اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں، آپ شریک ہو جائیں انشاءاللہ، میں ضرور آپ کو جوڑوں گا، اور افروز صاحب آپ جڑ جائیں، آپ کو میں نے ریکویسٹ بھیجا، آپ جڑ سکتے ہیں، آپ جو کلام ہو آپ پیش کریں انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگی کہ آپ اپنے دوستوں کے درمیان پڑھیں گے، آپ کو حوصلہ ملے گا، اور آپ کے اندر ارجا پراپت ہوگا، اور آپ کو تقویت ملے گی۔ جب آپ پروگرام میں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ سر بلند رہیں گے، یقین مانیے۔ اور ایسے اپنے دوستوں کے درمیان پڑھ کر کے آپ اپنا سلیقہ اور طریقہ اپنا سکتے ہیں، اور پیش کرنے کا آپ کے اندر کلام پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر تقویت آئے گی۔ ہم لوگ کوئی بھی بڑے نہیں ہیں، سب برابر ہیں، بس الحمدللہ۔ دیکھیں ہمارے سعودی عرب سے میرے مشفق، میرے دوست جناب افتخار انجم صاحب مدھوبنی کے، وہ مسلسل دعائیں دے رہے ہیں، اور بہت بہت شکریہ افتخار بھائی، آپ کی حسن اندامی اور آپ کی قلم ریزی، اور آپ نے جو قلم کو حرکت دیا ہے میرے لیے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور یقیناً آپ سب کی محبتیں ہیں۔ اور اگر مسعود اکرم کاظمی صاحب ہندوستان میں ہیں تو پاکستان میں ہے تو ہندوستان تشریف لائیں، اور انشاءاللہ آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آپ کی خوبصورت چہرہ دیکھے بہت دن ہو گئے، واقعی آپ اگر اپنا چہرہ دکھا دیں گے تو تمام حضرات کو خوشی حاصل ہوگی، اور آپ شرکت کریں۔ جب تک چاہتا ہوں کہ عمران شاکر صاحب کچھ گنگنا دیں انشاءاللہ،
और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं अंदाज शायरी। कौन तुम लोग दिखाओ? ये है भाई कहाँ के हैं ये फैयाज भाई? इमरान साहब की माँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अभी ओहो बहुत बहुत आपका भाई खैर मकदम फैयाज भाई बहुत मेरे लाला, मेरे नाजो नखरे, मेरे खूबसूरत मन चले दिल भरे नकीब फैयाज मेरे भाई एक गर्व भी आपने पहले ही वैसे हिंदुस्तान में हमको बदनाम कर रखे फेसबुक पे, वैसे आप पाकिस्तान का लकब दे रहे, पाकिस्तान चले गए क्या? आप भगाना चाहते हैं क्या? वैसे ही मेरा बहुत सारा डिफेंड कर रहा है यार। चलिए आप अगर कश्मीर में थे तो हिंदुस्तान आ जाइए, हुआ ना? नहीं हकीकत में हम हिंदुस्तान में ही हैं, पाकिस्तान नहीं गए हैं। आप तो हकीकत बता रहे हैं, आप ऐसे ही बोल रहे थे फेसबुक पे कि पाकिस्तान में गड़बड़ हो जाता है, सब चीज गड़बड़ हो जाएगा मेरा। अरे बाप रे बाप, सब चीज हो क्या? अच्छा यार ये देखिए आम का चटनी देखिए। अभी इस वक्त रात के कितने बज रहे हैं? देखिए चटपटेदार में खा रहा हूँ, सिर्फ चटपटी बात इसके साथ फिर मजा आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद साहब देखिए। ओ शाहिद अरे 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 शाहिद सिंगारपुरी कहाँ हो भाई? बड़े भाई कैसे शाहिद? आपके दुआ से बढ़िया है। कहाँ फैयाज भाई के दयार में हो क्या? हाँ यही तो स्कूल में हो क्या? हुदा पब्लिक क्या नाम है? हुदा स्कूल जो है वही अब्दुल्ला साहब जी। अरे वाह माशाल्लाह, क्या कहने। तो फैयाज भाई आप अररिया का कोई खास चीज खिलाते कि वही आम का चटनी खिला रहे हैं आप? यही खास आम की चटनी है जिनकी मतलाहट है ना सुबह तक रहती है। भागलपुर की सरजमी से लेके अररिया में आया तो उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, ये खाली आम खिला रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ बात है। नहीं मेहमान नवाजी 3 रोज हो चुका है ना, ये चौथा रोज में स्पीड दे रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। आम खा करके स्पीड आता है ना। नहीं तो ठीक है, आप खाइए तब क्या कहते हैं। चाहते हैं कि 2-4 अशार आपके आज के हालात हाजरा पर हो जाए तो बेहतर है। अभी हाँ रांची भिजवाइएगा आप हमको, ऐसा लग रहा है। मैं जिंदा हूं तो बगैर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ट्रेन के पटरी से लेकर के बस स्टॉप तक इंशाल्लाह आपकी खबरगिरी करूंगा। नहीं ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन इस टाइम बड़ा थोड़ा सा क्या बताए टफ लग रहा है थोड़ा सा। कोई टफ नहीं, रात के अंधेरे में अगर पटना जाना पड़े तो मैं इंशाल्लाह खरामा खराबा दौड़ता हुआ पहुंच जाऊंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, आप लोग तो रहते हुए आया, इसकी जरूरत इंशाल्लाह नहीं आएगी। और अगर कभी जरूरत पड़े तो जरूर इंशाल्लाह याद कर लेंगे आप लोगों को। आप जैसे दिक्कत दो मीम के सिपाही हैं। शाहिद को खिलाइए, शाहिद को खिलाइए, बड़ा शर्मा रहा है बंदा। नहीं मेरे साथ बोलता है कि मैं आम खाने के बाद जब जबान चपर हो जाता है मेरा तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूं, इसलिए आम नहीं। खैनी भी खाते हैं शाहिद भाई, आम से ज्यादा खैनी को मदद करवाइए। सोशल मीडिया पे इस तरह से बदनाम ना करें मसूद भाई। नहीं मैंने उस वजह से नहीं कहा, मैंने उस वजह से कहा भाई झारखंड की जिंदगी को याद करना तुम। नहीं भाई ये सबसे अल्हम्दुलिल्लाह में महफूज हूँ, बहुत दूर। तो ऐसा नहीं कहीं करके मसूद भाई चाहते कि आपकी हाजिरी में इमरान शाकिर साहब चंद कलाम पेश कर दें तो इंशाल्लाह हम भी रुखसत हो जाएंगे सारे लोग। हजरत मैं थोड़ा सा क्या बताए, पूरे फैमिली के बीच हूँ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपकी हुक्म है, वैसे पूरे फैमिली के बीच बैठा हूँ। ठीक है इमरान शाकिर साहब आप पेश करें। हाँ इमरान भाई अभी फैमिली के बीच थोड़ा सा कुछ सुनना बड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम सुन सकते हैं, इमरान भाई को सुन सकते हैं। इमरान भाई आप सुनाइए, मखमली आवाज है आपकी माशाल्लाह। जी चलिए मैं दस्तारबंदी पे कुछ कलाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नाते नबी में पढ़ चुका हूँ। हाँ ये ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही शाहिद का हुआ भी है, कुछ दिन पहले ही हुआ था।
2-3 महीना पहले, कितने दिन पहले हुआ है शाहिद? मेरा हुआ था 26 फरवरी को। हाँ कुछ दिन पहले ही हुआ था। हाँ अभी तो असल दस्तार बाकी है, इंशाल्लाह क्या कहते हैं ये नवंबर में, नवंबर के आखिर शनिचर को होगा असल दस्तार। अरे यार हम वहाँ गए थे, तुमको बहुत कॉल कर रहे थे, नहीं लग रहा था, इनकमिंग वन बता रहा था। पता नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, नवंबर में सब साथ चलेंगे दस्तार लेने के लिए। हो सकता है बीच में जब आप गए होंगे तो मेरा मोबाइल बंद हो उस वक्त। हाँ बहुत लगाए थे, नहीं लगा था। हाँ मदरसा में जब मैं था ना तो कुछ दिन मेरा मोबाइल बंद था असल में। अच्छा रमजान से मेरा मोबाइल चालू हुआ है। अच्छा जी चलिए इमरान भाई। हाँ जी बिल्कुल, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इमरान भाई पढ़ा अपना। जहाँ में मेरी शोहरत बड़ा निशान आया है, 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 मेरा बेटा जो बन के हाफिज़े कुरान जो बन के हाफिज़े कुरान आया है, मेरा बेटा जो बन के हाफिज़े कुरान आया है। शेर देखें, सजा कर सर पे दस्तारे हिफाजत लाडला मेरा, 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 अरे बनाने वाले जन्नत का मुझे मेहमान आया है, बनाने वाले जन्नत का मुझे मेहमान आया है, मेरा बेटा जो बन के हाफिज़े कुरान आया है। सब अपने जो माँ बाप होता है अपने बेटे को चाहता है कि हाफिज़े कुरान बनाओ। ये देखिए ये शेर दिखाई इस हवाले से, कहा माँ बाप ने हाफिज बनाने की तमन्ना थी, कहा माँ बाप ने हाफिज बनाने की तमन्ना थी, कहा माँ बाप ने बनाने की तमन्ना थी, कहा माँ बाप ने बनाने की तमन्ना थी। अरे हमारे दिल का पूरा करके ये अरमान आया है, पूरा करके ये अरमान आया है, मेरा बेटा
जो बन के हाफिज कुरान आया है। आखिरी शेर देखें, यकीनन जगमगाएगी हमारी कब्र की दुनिया, यकीनन जगमगाएगी हमारी कब्र की दुनिया, यकीनन जगमगाएगी हमारी कब्र की दुनिया, यकीनन जगमगाएगी हमारी कब्र की दुनिया। अरे लहद के वास्ते बन के रोशन दान आया है, लहद के वास्ते के रोशन दान आया है। जहां में मेरी शोहरत बढ़ाने शान आया है, मेरा बेटा तेरा बेटा जो बन के हाफिज कुरान आया है, मेरा बेटा जो बन के हाफिज कुरान आया है। शुक्रिया। इमरान भाई कहाँ से हैं आप? मैं असल में शाहिद भाई के करीब हूँ, आड़गांव से, बांका जिला से, बिहार से। बांका जिला बिहार से हैं, बिहार के बॉर्डर झारखंड। जी जी झारखंड है यानी कि नहीं, बिहार से हैं, बिहार के बॉर्डर के हैं। ओह अच्छा समझ में आ गई। जी 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 जी। ओह अच्छा, वो बिहार जो 2 हिस्सों में जो तकसीम हुआ है। अच्छा अब समझ। किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया, मैंने जो सोचा था वो अंड फंड हो गया। चलिए किसी माशाअल्लाह। ने कहा था कि किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया, मैंने जो सोचा था वो अंड भंड हो गया। जिस दिन दूल्हा बन के पहुंचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। इसका भाई देखो एकदम क्या तारीख रकम कर दिया उसकी शादी में, कि उधर शादी है और इधर बिहार की तकसीम है। खैर शाकिर भाई, आप जब शेर पढ़ रहे थे मुझे एक शेर याद आया कि इलाही हम दुआ गो हैं अमल में जान पैदा कर, इलाही हम दुआ गो हैं अमल में जान पैदा कर, जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर। वाह वाह। इलाही हम दुआ गो हैं अमल में जान पैदा कर, जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर। ये छप्पर झोपड़ी फाका कशी मंजूर है हमको, ये छप्पर झोपड़ी फाका कशी मंजूर है हमको, मगर नस्ल हमारी हाफिज कुरान पैदा कर, मगर नस्ल हमारी हाफिज कुरान पैदा कर। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इनायत करम नवाजिश। जी हमारे अनवर भाई आए हुए थे, कहाँ चले गए? बोले कि कुछ गुनगुनाएंगे। अभी आप शाहिद भाई, अभी आप अररिया में हैं? जी जी मैं, हाँ, हुदा एजुकेशनल एकेडमी यहाँ क्या कहते हैं अररिया में हूँ जी। ये कोई साकिब कमल जो है ये बोल रहे हैं ऐड करने के लिए। अच्छा ये हमारे फैयाज भाई जो हैं, फैयाज भाई, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अरे एक ही साथ पढ़े थे, एक नूरानी कायदा हम लोग एक ही साथ। हमारा घर तो ऐसे नेपाल हुआ, तो सरहद पार करके गए उस तरफ, तो एक मदरसा सोनापुर था, उसी में हम दोनों जेरे तालीम थे। माशाअल्लाह। काफी दिनों तक दोनों साथ रहे, इब्तिदाई तालीम थी हम लोगों की। अभी आप हजरत कहाँ हैं? उनका ननिहाल जो है ना, मेरे ही गांव में है शायद। अच्छा।
चलिए क्या कहते हैं साकिब कमाल साहब जी, आप जब जुड़ चुके हैं तो कुछ आप भी सुना दीजिए। हाफिज महफूज साहब बोलेंगे तो हम पक्का सुना देंगे। हाँ पक्का। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए साकिब साहब जी जुड़ गए हैं, ये भी उधर ही के आपके कुर्ब जवार के ही हैं। ये इरशाद हो। हम तो ये मुंतजिर है आपके कि आप कब सुनाए। चलिए भाई तब सुना दीजिए। क्या सुनेंगे आप लोग ने सुनाइए। मैं देखा लाइव है हमारे हाफिज जी जो है हाफिज महफूज साहब लाइव है, तो हम सोचे कि ऐड हो जाए जरा। बात में खैरियत से हैं हाफिज जी? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आपकी। तो कॉल किए थे आप, तो मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आप बखैर पहुंच गए। बढ़े आप अपनी खूबसूरत मुतरन्निम लहजे से हम सामईन को सैराब करें। क्या सर? अच्छा सुनिए कि नूरियत के जलवों ने, क्या मिठास भरी आवाज है। नहीं हमको बहुत अच्छी आवाज थी। अच्छा सुना दे। जी बिल्कुल सुनाए आप, अगर सुनाए तो अब छोड़ना नहीं आपको, क्योंकि आवाज की झलक आपने सुनाकर हम सबको दीवाना कर दिया। अच्छा रुकिए, मैं इधर रेस्ट वाले रूम में आके आप सुनाता हूँ। बिल्कुल यही चाहिए शायरी के लिए, आप दीवाना बन के सुना। अच्छा सुनिए कि नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, कि नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, और मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। और एक लाइन हाफिज महफूज साहब के लिए, उनके समातों के हवाले, कि दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, कि दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला। वाह बस हो गया। भाई इसका संगम देर तक नहीं रहता, हुस्न इश्क का संगम, हुस्न इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, कोई बेहसी मौसम देर तक नहीं रहता, बेहसी मौसम देर तक नहीं रहता। यही तरन्नुम था, तो मैं सोचा कि उस तरन्नुम को मैं भी गुनगुना। परफेक्ट, अच्छा शायर है भाई, देखिए वाह। जो अधूरा था उसको आपने पूरा चलिए, किया। बहुत पुरानी नात है, मैं इस नात को पढ़ने के बाद रुखसत हो जाऊंगा। देखिएगा शाहिद भाई, बहुत बचपन में पढ़ा करते थे, और शायद के महफूज भाई भी सुने होंगे और पढ़े होंगे इस नात को। और हमारे क्या नाम है आपका भाई साहब का, ये जो सुना है साकिब भाई, और माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े आप, बहुत दिल खुश हो गया। आपकी आवाज में बहुत लचीलीपन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मजीद तरक्की हासिल फरमाए। मुद्दत से यही है, मुद्दत
لمبی سینے میں مدت سے یہی حسرت سے لمبی سینے میں ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے ہماری موت بھی آئے آقا بس مدینے میں مدت سے شہ عالم سینے میں ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے ارے نبی کے بن بلائے کو جاتا ہے مدینے بن بلائے کو لے جاتا ہے مدینے میں عمران بھائی بہت خوب ماشاء اللہ. چلو دیوان طیبہ کی چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں کیا تمنا ہے دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں ارے مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ جینے میں کیا خاک آئے گا یا گھٹ گھٹ کے جینے میں کر مزہ کیا خاک آئے گا مدت سے یہی حسرت شہ لمبی سینے میں ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں. یہ شعر بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے. جو ثانی میں دوسرا جو مصرع پڑھا تھا میں بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے ارے نبی کے بن بلائے کو جاتا ہے مدینے
बुलाए जाता है मदीने में। बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमरान साजिद साहब, मेरे लहजे में कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ना बस मस्क या शायर हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। मकसदन ये कि आप कुछ हौसला बख्श दे और आप लोगों की तवाना अंदाज का मुझे अगर हौसला मिल जाए तो तबीयत मिलेगी। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये खूबसूरत लबो लबाब चेहरा जनाब महबूब साहब का, ये मेरे मुश्किल दोस्त है, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत बचपन के साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेपाल में जब हम पढ़े हैं और मेरा ननिहाल इनके गांव में, मैं हकीकी मैं नेपाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल मैंने अपनी जिंदगी 15 साल मेरा नेपाल में गुजरा है इनके साथ। बाप रे और हकीकत और ये सब मेरे मामू के दर्जे के हैं, लेकिन मेरा भाई समान है ये। और बचपन में हम लोग भाई भाई बन के रहे हैं, लेकिन रिश्ता मामू का होगा। चलिए इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग जुड़ते रहेंगे, बातचीत होगी, अच्छा लगा। और आप सबकी एक शेर में पढ़ देता हूँ, उसके बाद जालियों की चमक देख कर, जालियों की चमक देख कर, शहर की दिलकशी देख कर, जालियों की चमक देख कर, शहर की दिलकशी देख कर, जालियों की चमक देख कर, जालियों की चमक देख कर, शहर की दिलकशी देख कर, शहर की दिलकशी देख कर, अरे भूल जाओगे खुलते बरी, भूल जाओगे खुलते बरी, मुस्तफा की गली देख कर, हाँ भूल जाओगे मुस्तफा की गली देख कर, जालियों की चमक देख कर, शहर की दिलकशी देख कर, अरे भूल जाओगे मुस्तफा की गली देख कर, हाँ जाओगे खुलदे बरी, मुस्तफा की गली देख कर। बहुत शुक्रिया, बहुत इमरान भाई, बहुत आपकी आवाज बहुत सुरीली है भाई। महफूज भाई, साकिब भाई और हमारे इमरान शाकिर साहब, और इसी तरीके से तारिक भाई, और इधर बदरुल भाई और स्वीट, और ये हमारी महुआ तिवारी वो भी जुड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है, और ये बहुत हमारी सिस्टर है, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कविता वगैरह पढ़ती है। ये छत्तीसगढ़ से हैं शायद, हमारे पास भी जुड़े थे। जी 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 जी, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी सोच बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया पढ़ती हैं, उनके लिए दुआ करें। जी जी, अल्लाह हिदायत आमना नसीब फरमाए। ठीक है महफूज भाई, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, खुदा होता हूँ इंशाल्लाह। इमरान भाई खुसूसी दुआ की दरखास्त है, अल्लाह सलामत रखे सबको। चलिए, बहुत खुशी हुई, आपका दीदार हो गया, समझे कि नहीं। आपको देखता हूँ तो बचपना याद आता है यार। मुखड़े का मुखड़ा है, मुखड़े का मुखड़ा बोल जाते हैं, ये मोहब्बत है। जी जी जी, ये कौन है? चलिए ठीक है इंशाल्लाह, दुआ की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम।